Hello students, welcome to online study, English medium, subject English. Standard 7th, Grafalco Grammar, Chapter 12, Past Participle. So dear student, let's understand what is the meaning of past participle. Past participle, it means you know very well that dear students about verb. Verb it means action word. So verb have four forms: root form, past participle and present participle. So third form of the verb is past participle. Generally in past participle sometimes you heard the word like played, cried, jumped. So these all are the example of past participle. Participles are words that are formed by adding ed or ing to the verb as suffixes. Participles are classified into two categories: past participle and present participle. So dear students, let's go ahead with this chapter. It's about past participle. It means verbs third form. Generally in these participles, participles means what? Action word, it means verbs formed by adding ed or ing. Sometime word है, general word है, for example play. सो प्ले के पीछे जो ईडी या तो आईएनजी लगा के जो फॉर्म बनाते हैं, प्लेड और प्लेइंग, सो वो जो ईडी एंड आईएनजी लग के जो फॉर्म बनता है, दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. अगर ईडी लगता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है और अगर आईएनजी लगता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. सो जनरली ये दैट इज कॉल्ड ईडी एंड आईएनजी जो लगता है, दैट इज कॉल्ड सफिक्स. सो वर्ड के पीछे जो वर्ड्स लगते हैं और जो एक न्यू फॉर्म जनरेट होता है, दैट इज दी सफिक्स. सो participles generally divided into two categories, that are past participle and present participle. So in past participle generally formed by ed using as a suffix behind the words, and in present participle generally formed by the ing, which is adding behind the words. So let's understand the past participle. Past participles are formed by adding ed to the verb. Past participles है वो generally किससे forming होता है? verb के पीछे जो ed लगता है और एक जो new word बनता है, that is your past participles. Let's understand the example of this past participle. For example, join. Look at here, join and joined. So join word के पीछे क्या लगा? ed. So जब ed लगता है तो ये verb है वो क्या बन जाता है? past participle. Look at here, remember, remembered. So remember के पीछे देखो यहाँ पे ed लगा है. Look at here. So in the last word, so ed लगता है, it means that is called past participle. Next one, the past participles of all regular verbs follow this pattern. However, the past participles of irregular verbs vary considerably. What happen? Past participles के generally जो words होते हैं उसमें कोई कोई verb होता है वो रेगुलर ही हो, वैसा जरूरी नहीं है. समटाइम्स वो इरेगुलर फॉर्म में भी हो सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल कैच है तो उसके कैच के पीछे हम V3 फॉर्म में ईडी नहीं लगा सकते, बट कैच का क्या होता है? कैच, कॉट, कॉट. तो वहां पे ईडी नहीं लगा फिर भी वो पास्ट पार्टिसिपल बना. इट्स मीन्स उसका फॉर्म क्या हुआ? कॉट. तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वाइल रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होते हैं उसमें जनरली ईडी लगता है. लुक एट हियर सम एग्जांपल्स गिवन हियर. फॉर एग्जांपल सिंग. सिंग का V3 फॉर्म क्या होता है? संग. देखो यहाँ पे ईडी नहीं लगा है, इट्स मीन्स ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है. क्राई का क्या हुआ? क्राइड. ईडी लगा बट वाई का क्या हो गया? आई हो गया. सो
This is the example of irregular verbs. It's converted into past participle. At that time, it's generate a new form of verb. Now, past participles perform the following functions in sentences. Past participles है वो जब sentences में use होता है तो वो कौन सा functions perform करता है, यानी कि कौन से functions के तौर पे वो sentence में इस्तेमाल किया जाता है. They are used in perfect tenses as active voice. Past participles है वो परफेक्ट टेंस के फॉर्म में एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं. लुक एट योर एग्जांपल दिया है यहाँ पे. द सार हैज अबैंडन्ड हिज थ्रोन. तो देखो यहाँ पे कौन सा वर्ब फॉर्म है, V3 फॉर्म है. अबैंडन्ड यानी कि छोड़ देना, उसको त्याग देना. सो यहाँ पे देखो ईडी लगा है, बट ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो ये परफेक्ट टेंस का रूल आ गया यहाँ पे, और एक्टिव वॉइस में है यहाँ पे बिकॉज डूअर ऑफ द एक्शन भी यहाँ पे मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे है. दे आर यूज्ड टू फॉर्म पैसिव वॉइस. समटाइम्स पास्ट पार्टिसिपल है वो पैसिव वॉइस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. द थ्रोन हैज बीन अबैंडन्ड. यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आगे आ गया और हैज बीन अबैंडन्ड, तो ये पैसिव वॉइस की फॉर्मूला हुई. यहाँ पे बीच में बीन आ गया. दे आर यूज्ड टू फॉर्म एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस. समटाइम पास्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. Look at here. The abandoned throne was occupied by the chief of the army. देखो यहाँ पे थ्रोन यानी कि शासन है, बट कैसा है, एबेंडन्ड. तो जब नाउन के अंदर कुछ ऐड होता है तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है. तो एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस के फॉर्म में भी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है. इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, इट्स फॉर योर एक्सप्लेनेशन ओनली. दिस इज द एग्जाम्पल for your easy explanation. They are also used adverbially albeit very rarely. Sometimes वो adverb के फॉर्म में भी इस्तेमाल किए जाते हैं. Abandoned in May, the throne lay deserted for 6 months before being occupied again. Abandoned in May, the throne lay deserted for 6 months before being occupied again. तो जब वर्ब के अंदर कुछ ऐड करता है, कोई वर्ड है, वो जब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इट्स मीन्स दैट इज दी adverbially, but it's using very rarely. They are used to form adverbs by adding ly. समटाइम्स है वो एडवर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं. क्या ऐड करके, ly ऐड करके, यानी कि वर्ब के लास्ट में ly ऐड होता है और वो एज अ एडवर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल होता है. लुक एट हियर. शी स्पोक एक्साइटेडली अबाउट हर हनीमून. तो यहाँ पे देखो एक्साइटेडली. सो वर्ब के पीछे एक्साइट होता है, उसका क्या हुआ, एक्साइटेड. तो ईडी लगा तो ये पास्ट पार्टिसिपल तो बन गया, पर उसके पीछे और क्या लगा, ly. तो समटाइम्स ये ly लग के भी एज अ एडवर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल होता है. Now let's go ahead with the exercise. Look at the first one. Pick out the past participles in the following sentences and identify the function they perform. यहाँ पे जो पास्ट पार्टिसिपल्स दिए हैं फॉलोइंग सेंटेंसेस के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करके उसका जो फंक्शन है उसको भी यहाँ पे वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो भी आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम दिस सेंटेंस, आइदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म. ओके, लुक एट द फर्स्ट वन. Seen from above, the Taj Mahal looks like a shimmering moon. ऊपर से अगर देखा जाए तो ताजमहल है वो कैसा लगता है, शिमरिंग मून जैसा लगता है. सो ऊपर से देखा जाए तो एक्शन वर्ड कौन सा है, सीन. तो ये पास्ट पार्टिसिपल हमें मिल गया. ओके, नाउ सीन है वो कौन से तौर पे यूज किया गया है, एडवर्बियली. बिकॉज देखो ऊपर से
देखना, बट कहाँ से, ऊपर से, सो वर्ब के अंदर कुछ ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, दैट्स वाई सीन इज एडवर्बियली। सेकंड वन, ही वॉज बिटन बाय अ मैंगल्ड डॉग, उसको किसके द्वारा मारा गया, मैंगल्ड डॉग के द्वारा बाइट किया गया, काटा गया। सो आंसर इज beaten. Beaten is a past participle. So here this word beaten is used as a passive voice in simple past tense. देखो यहाँ पे was दिया है तो ये simple past tense है और ये passive voice का sentence है. So beaten is used as a passive voice in simple past tense. एंड वन अनदर ऑल्सो मैंगल्ड, डॉग है पर कैसा है, मैंगल्ड, तो नाउन के अंदर कुछ ऐड करता है, इट्स मीन्स दैट इज द एडजेक्टिव। थर्ड वन, द मिनिस्टर हैज ग्रीटेड द एम्बेसडर्स फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट। मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं, एम्बेसडर्स को सेक्रेटेरिएट से ग्रीटेड कर रहे हैं। सो विच वन इज द पास्ट पार्टिसिपल, ग्रीटेड। सो ग्रीटेड है वो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है यहाँ पे। सो लेट्स गो अहेड विद द अनदर वन। विल यू रियली बाय द कैसल हॉन्टेड बाय द डेड काउंट। सो हियर विच वर्ड, हॉन्टेड। सो हॉन्टेड इज एडजेक्टिव फ्रेज। कैसल है पर कैसा है, किला है वो कैसा है, हॉन्टेड है। सो हॉन्टेड कैसल, सो नाउन के अंदर ऐड कर रहा है मतलब एडजेक्टिव है। दिस ईमेल बाउंस्ड बैक ड्यू टू द अटैच्ड फाइल्स। ईमेल है वो वापस आया है किसकी वजह से, अटैच्ड फाइल की वजह से। सो बाउंस्ड दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल। Here this word is using as a active voice in simple past tense because देखो यहाँ पे doer of the action दिया है, so active voice है और simple past tense भी है because bounced यहाँ पे V2 form दिया है। Second one है attached, so फाइल है तो वो नाउन है, नाउन के अंदर ये वर्ड ऐड हो रहा है मतलब ये एडजेक्टिव है। सो attached है वो क्या है, एडजेक्टिव। 6 number, he always fasted on mass days and devotedly asked for Saint Benedict blessings. So यहाँ पे कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है, फास्टेड। सो फास्टेड वर्ड है वो एक्टिव वॉइस के फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे देखो फास्टेड V2 फॉर्म दिया है, दैट्स वाई सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड वन, डिवोटेडली, उसने पूछा, कैसे पूछा, डिवोटेडली पूछा। सो ये वर्ब के अंदर कुछ ऐड कर रहा है तो ये एडवर्ब बन गया। सो डिवोटेडली क्या होगा, एडवर्ब। और देखो यहाँ पे हमने रूल देखा था कि ईडी के पीछे ly भी लगता है। और नेक्स्ट वन, आस्क्ड। सो आस्क्ड है वो क्या बन रहा है, एक्टिव वॉइस इन सिंपल पास्ट टेंस बिकॉज ये V2 फॉर्म दिखा रहा है और सिंपल पास्ट टेंस भी दिखाता है। 7 नंबर, the cause for widespread cholera is contaminated water. Contaminated है वो क्या है, water है बट कैसा है, contaminated. So noun में add हो रहा है, it means this is your adjective. 8 number, disappointed by the behavior of her own children, Mama Rose decided to stay at an old age home. So which one is the past participle, disappointed. So disappointed is behavior है, disappointed by the behavior of her own children. So behavior है कैसा है, disappointed. So verb में add हो रहा है, so that's why this is your adverb. Next one, decided. So decided is V2 form है तो active voice है simple past tense के form में। 9 number, the refurbishment of the museum was delayed due to paucity of funds. So look at here in 9 number sentence there is a past participle given here, that is your delayed. So delayed is using here in this sentence in the sense of passive voice in simple past tense because this is indicated V2 form, that's why it's your simple past tense.
Now let's go ahead with the next one. Carter lay in disguise waiting for the chosen moment. So here which word is using as a past participle? That is chosen. So main root word is for chosen is choose. So here chosen it means V3 form. That's why it's your past participle. So मोमेंट है पर कैसी मोमेंट है? चोजन. सो मोमेंट है वो एक नाउन है. वो नाउन में कोई वर्ड अगर कुछ ऐड करता है, डिस्क्राइब करता है, इट्स मीन्स दैट इज योर एडजेक्टिव. दैट्स व्हाई chosen is indicated as a adjective. Next one. Let's go ahead with the B number exercise. Write the past participle of the following verbs. So dear students, here some words given here and you will have to convert it into past participle. So here some root words given here that you have to convert into past participle. First one, want. Want का क्या होता है? Wanted. सेकंड वन, गो. गो का क्या होता है? गॉन. थर्ड वन, रेड. उसका क्या होगा? रेड. ओनली प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. आफ्टर ऑल थिंग्स आर सेम. इट्स मीन्स स्पेलिंग इज सिमिलर. थिंग का क्या होता है? थॉट. रन का रन. रन, रैन, रन. नेक्स्ट वन, 6 नंबर, स्केयर. स्केर्ड. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? स्कैर्ड. 7 नंबर, फाइट. फाइट का क्या होता है? फॉट. 8 नंबर, स्विम. स्विम का क्या होता है? स्वम. सी. सी का क्या होता है? सिन. ईट. ईट का eaten. So dear students, here the explanation of this past participle chapter is over. I hope so you understand very well. Thank you.